be discussing today would require some notes to be noted down, and I would request you all to please keep a paper and pen along with you. Sanjay ji, very nice. Siddharth ji, hello sir, hello. So just 2 minutes are left in 3 p.m. So we'll be starting at 3. Many professionals are joining now. Good afternoon, Sridhar ji, Sanjay ji, very nice. Thank you, Siddharth ji, hello. What is the topic for today? Sir, recent amendments in GST. All the recent amendments which have come in the recent past. So we'll be discussing all those. And also the burning issues in GST. It will be a pure question and answer based round. Heyman Batraji, hello sir, hello, how are you? Ankit ji, hello. Rajan Khandelwal ji, hello sir. Heyman Batraji, hello, hello. Just 1 minute left, sir, then we'll be starting the session. Hope you are able to see my screen. Rather see me. Okay, so we'll now start. And as you all know, I'll start with the introduction first. So my name is Rajat Gurnani. Guru Rajji, I met you in Delhi in conference. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, so Ashish ji, connection issue. Please refresh. Please refresh. Sir, I would now request to please stop the questions coming up. Hello, hi, sir. बाद में पक्का करेंगे. अब थोड़ा सा start कर लेते हैं. थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं. बहुत enjoy करके करेंगे. और आपको सबको मजा आएगा. Just stay with us for 1 hour. So about myself, my name is Rajat Gurani and I'm a chartered accountant by profession. We have done almost now 100 plus seminars, webinars across the country. And today we'll be discussing all the recent amendments which have come in GST. Today's session will be both in English and Hindi. So many of my friends from South India has also joined. So I'll be doing it in English as well for them. एंड जो लोग मेरे दोस्त लोग, जितने मेरे भाई लोग, जितने मेरे प्रोफेशनल्स हैं, आप सबके लिए मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करता रहूंगा. सो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा अगले 1 घंटे तक. आपको बहुत मजा आएगा, बिल्कुल बोरिंग नहीं होने दूंगा. सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक पेपर और पेन अपने साथ लेके बैठिएगा और अपनी वाइफ से कह दीजिएगा यूटेंसिल्स और वो सब मैं बाकी बाद में करूंगा. सिर्फ 1 घंटा दे दीजिए मुझे, ठीक है? So just focus for the next 1 hour. Just be with us for the 1 hour, and I assure you that I'll make you enjoy along with learning as well. It will be a pure question and answer based round and based session, so it won't be boring, and it will be in English and Hindi as I already told. Also, I think some questions are coming up with respect to the network. The network is perfectly working, and just refresh if it is not working for you. Okay, now let's start the session since it's already 3 p.m. So I will present my screen now. Just let me know if my screen is visible to you. Is my screen visible to everybody? Is my screen visible to everybody? Please let me know. Yes, Sarthak ji, yes, Neelkant Sharma ji, yes. Okay. So our topic for the day is recent amendments in GST. And so first we will be discussing the relaxation which have come for the composition dealers, because many relaxation have come for composition dealer as well. So we will be discussing all those. Then next is e-way bill validity. What is the relaxation given for e-way bill? We would be discussing that as well. And GST refunds. Yes, there is a special announcement for refunds in GST. We'll be discussing that. Okay, Rule 36, Sub Rule 4, the ITC restriction. We'll be discussing that as well. Then next is directors remuneration. There is a lot of discussion going on with respect to the directors remuneration. Some AAR has also been passed by the Advanced Ruling Authority. So we'll be discussing that. What is my point of view? What is actually to be done? And last but not the least, what is the relaxation in respect of GST returns? Rather, whether it is the due date relaxation or the compliance date relaxation. So we'll be discussing all that. So to start with, first topic is relaxation for composition dealers. So what is the relaxation which has come for the composition dealer? Please note, प्लीज ध्यान से सुनते रहिएगा. मैं आपसे क्वेश्चन एंड आंसर भी करूंगा, क्योंकि पहले मैं बोलूंगा फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो फिर बेकार है सर, फिर 1 घंटा बैठने का. चलिए, फर्स्ट इज रिलैक्सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर द ड्यू डेट टू फाइल GSTR 4 for the financial year 1920 has been extended. The answer is yes, it has been extended. So the due date to file GSTR 4 for the financial year 2019-20 has been extended. Notification, as you all know that I always prefer to communicate with respect to notification, circular
or an order, a press release, because whatever I say, I always say with respect to the document, substantial document. So notification number 34 dated 3rd April 2020 states that provided that the said person shall furnish the return form GSTR4 till the 15th day of July 2020. संयोग जी 7 जुलाई नहीं है, ये 15 जुलाई है, GSTR4 की बात हो रही है. प्लीज इसे ध्यान में रखिए. 15 जुलाई 2020 इज द लास्ट डेट फॉर GSTR4. ओके, नोट इट डाउन सर, पेपर पेन पे नोट करते रहिएगा. नेक्स्ट, whether the due date to furnish CMP08. What is CMP08? Can somebody tell? Okay. Sumti Goel ji, GSTR4 is annually, ma'am. GSTR4 is annual return for composition dealers. CMP08 quarterly. CMP08 is quarterly statement which you need to furnish. So for the quarter January to March, CMP08 has been extended. Notification number 34. It says that details of payment of self-assessed tax in form GST CMP08, the quarter ending 31st March 2020 till the 7th day of July 2020. नरेंद्र जी perfectly correct, perfectly correct. आशीष खमथानिया जी क्वार्टरली रिटर्न, बिल्कुल सही जवाब है. तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं. आपके स्क्रीन पे भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर करिए. प्लीज जल्दी. आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, प्लीज इसका आंसर करिए. 15 जुलाई, परफेक्ट. 30 जून नहीं है सर, 15 जुलाई है. प्लीज करते रहिए, आंसर करते रहिए. ठीक है, अब मैं आपको आंसर्स पब्लिश कर देता हूं. 75 बहुत बढ़िया सर, आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. सो मैंने पोल को एंड कर दिया है. अब आप देख सकते होंगे 72% ने करेक्ट आंसर दिया विच वाज 15 जुलाई, और 27% ने बोला 30 जून विच वाज रॉन्ग आंसर. सो 15 जुलाई GSTR4 की डेट हो चुकी है. नेक्स्ट, सो कॉम्पोजिशन का सबको समझ में आ गया? कॉम्पोजिशन में एनी क्वेश्चंस? ओके, नो क्वेश्चंस. 15 जुलाई, परफेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, वेदर द ड्यू डेट टू फाइल CMP02. सर CMP02 क्या होता है? CMP02 प्लीज बताइए, व्हाट इज CMP02? कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करने का फॉर्म. परफेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम CMP02, yes, and ITC03 is for to opt for. बहुत बढ़िया. विरल दोषी जी, to opt for composition tech. Very good sir, very good. दीपांशु गर्ग जी 30 June. Thank you so much sir, thank you. So yes, the due date to file CMP02 has also been extended. Notification number 30. So earlier it was 34, now it is 30. Please keep noting down the notification numbers. Provided that any registered person who opts to pay tax under section 10, मतलब कि composition में अगर आप आना चाहते हैं for the financial year 2021, CMP02 फाइल करना होगा. 30th June is the last date to opt for composition scheme. 30th June is the last date to opt for composition scheme. Next, and shall furnish the statement in ITC03 till 31st of July. So conclusion क्या निकलता है सर? CMP02 की तारीख है 30th June, ITC03 की तारीख है 31st जुलाई. श्रीकांत प्रसाद जी 15 जुलाई नहीं है, आपका जवाब गलत है सर. प्लीज स्क्रीन पर देखिए, CMP02 30th जून, ITC03 31st जुलाई. विरल दोषी जी, आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड. थैंक यू सर, थैंक यू. Should I go ahead? CMP02 done. Now a special note has been released with respect to opting for composition scheme, which says the taxpayer should not file any GSTR1, GSTR3B for any tax period of financial year 2021. प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो फिर किसी भी GSTN की GSTR1 या GSTR3B मत भरिएगा, अदरवाइज आप कॉम्पोजिशन में नहीं जा पाएंगे. रॉबिन जी, कनेक्शन इश्यूज है, प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए. थैंक यू. सुनील अग्रवाल जी, ITC03 रिपीट. सर ITC03 31st जुलाई 2020. सर PPT मैं सबको दे दूंगा. I will provide this PPT. I will surely give you, but please listen carefully. Okay, so पहले से ही जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है उन्हें ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को ये फॉर्म भरने की जरूरत है. आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज ध्यान रखिएगा, उन लोगों की GSTR1, GSTR3B मत फाइल कर दीजिएगा जिनको कॉम्पोजिशन में आपको ऑप्ट करना है. थैंक यू सुनील जी, थैंक यू. चलिए, कॉम्पोजिशन के बारे में खत्म हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज ई-वे बिल का एक्सटेंशन, वैलिडिटी. सो ई-वे बिल में भी एक एक्सटेंशन लाया गया है वैलिडिटी में. वो क्या एक्सटेंशन है मैं आपको बता देता हूं.
नोटिफिकेशन नंबर 35 है जो कि 3 अप्रैल को आया था। नोटिफिकेशन नंबर 35 डेटेड 3 अप्रैल स्टेट्स दैट वेयर एन ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड फर्स्ट। सर ध्यान से सुनिएगा, 3 पॉइंट है। पहला, ई वे बिल जनरेट हुआ है, रूल 138। सेकंड, उसकी वैलिडिटी, ध्यान से सुनिएगा, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में। ठीक है सर, कंडीशन क्या है? ई वे बिल जनरेट हुआ 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में, वो उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है, तो फिर उसकी वैलिडिटी डीम टू बी एक्सटेंडेड मान ली जाएगी 30 अप्रैल तक। अंडरस्टूड? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड, इट्स वैलिडिटी इज एक्सपायरिंग ऑन 20th मार्च, बिटवीन 20th मार्च टू 15th अप्रैल। अगर 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है, तो उसकी ऑटोमेटिकली जो ई वे बिल की वैलिडिटी है वो डीम टू बी एक्सटेंडेड कब तक मान ली जाएगी? 30 अप्रैल तक उसकी वैलिडिटी मान ली जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब मैं आप सबसे ये क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूं, प्लीज इसका आंसर करेगा। मैं स्लाइड हटा देता हूं, अदरवाइज फिर आप जवाब दे देंगे। प्लीज बताइए, अगर ई वे बिल की वैलिडिटी 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में एक्सपायर हो रही है, तो व्हाट इज द लास्ट डेट, व्हाट विल, टिल व्हाट डेट द वैलिडिटी विल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड? आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, आंसर्स आ रहे हैं, प्लीज आंसर, वोट करते रहिए, वोट करते रहिए। ऐसी मजा आएगा सर, ऐसी सीख लेंगे। बहुत सारी पीडीएफ पीपीटी तो आती रहती है, ऐसे सीखने में मजा अलग आता है। सो ऑलमोस्ट 1000 प्रोफेशनल्स, टेक्स प्रोफेशनल्स आर देयर विद अस। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम, प्लीज स्टे विद अस। ओके, सो आई विल नाउ एंड दिस पोल। मैं इस पोल को एंड कर देता हूं। आपके पास रिजल्ट आ गए होंगे। 91% ऑफ द टेक्स प्रोफेशनल्स ने करेक्ट आंसर दिया है। 30th अप्रैल तक उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी जाएगी, डीम टू बी, खुद ब खुद मान ली जाएगी। ये नोटिफिकेशन नंबर 35 कहता है। नेक्स्ट इज जीएसटी कस्टम इनकम टैक्स रिफंड। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज द प्रेस रिलीज डेटेड 8 अप्रैल। अभी 3 दिन पहले एक प्रेस रिलीज आई थी, उसमें यह बोला गया कि जितने भी रिफंड हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, जितने भी रिफंड हैं इनकम टैक्स के, कस्टम के, जीएसटी के, वो सारे रिफंड आपको दे दिए जाएंगे इमीडिएटली। सो लिमिट क्या रखी गई? ऑल द पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड, प्लीज नोट इट इज पेंडिंग। So if you will apply now, it won't apply. Already the refunds which have been applied till date will be refunded. Income tax up to 5 lakh, GST no limit given. So GST, whatever amount refund amount will be there, it will be refunded to you. Okay, so the government says the total refund granted will be approximately 18,000 crore. 18,000 crore. Sachin Malhotra ji, up to 5 lakh in case of income tax. Perfectly answered sir. इनकम टैक्स के केस में 5 लाख तक है, जीएसटी के केस में कोई लिमिट नहीं दी गई है। नाउ मेनी क्वेश्चंस वुड बी गोइंग इन योर माइंड, वेदर what is the amount, when it will be refunded. So I'll tell you one very important instruction which has been released 2 days back. DM Bhattarji, whom to approach for this? Sir, no need to approach, the government will automatically refund. I'll read this instruction for you. I'll read this very important instruction for you which I have got from Ministry of Finance dated 9th April, 2 days back. It says, it is hereby instructed that starting with immediate effect there shall be a special refund and drawback disposal drive. With the एक ड्राइव का लॉन्च करा गया है, इसका नाम रखा गया है स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव। उसके तहत क्या कहते हैं, 30 अप्रैल तक आपके जितने भी रिफंड पेंडिंग हैं सारे के सारे ऑटोमेटिकली आपको दे दिए जाएंगे। 30 अप्रैल तक जो भी रिफंड है वो आपको दे दिए जाएंगे। प्रदीप्ता कुमार साहू जी, फलियर ईयर आईटी रिफंड वाज अंडर होल्डिंग बाय डिपार्टमेंट। सर बहुत सारी कंडीशंस है, आर दीस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्किंग फॉर दिस? डीएम भत्तर जी, जस्ट स्टे विद अस सर, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस प्लीज, आई नो मेनी क्यूरियोसिटी इज गोइंग ऑन। So next is, it is expected that during this period all refund and drawback claims that are pending as on 7th April, so as on 7th April whatever refunds were pending for GST or income tax or custom will be refunded. Refund and drawback claims, please note this word. Next, though the decision to, this is very important point, please, though the decision to process pending refund claims has been taken with a view to provide immediate relief to the taxpayer, ड्यू डिलीजेंस इज टू बी डन। सर ऐसे ही नहीं दे देंगे, वो भी अपना ड्यू डिलीजेंस करेंगे कि एक्चुअली रिफंड बनता है या नहीं बनता है। दीपक पाल जी, डीएम भत्तर जी, पैसे वसूल इज द मेन ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट। मैं समझ सकता हूं, थैंक यू सर डीएम भत्तर जी। आई रिमेंबर आप मिले थे मेरे से अभी सेमिनार में। ओके, सो लास्ट पॉइंट इन दिस इज, आई थिंक आपको लास्ट पॉइंट विजिबल हो रहा है क्या?
Okay. So all the relevant legal provisions, notifications, circulars, instruction must be followed while processing this refund. Please note. So ऐसे ही रिफंड नहीं दे देंगे सर. 30th. So चार चीज याद रखते हैं. पहला 30th अप्रैल तक दे देंगे. सेकंड 7th अप्रैल तक के जो रिफंड है वो दे देंगे. इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम तीनों के रिफंड है. ठीक है. एंड इनकम टैक्स का अप टू 5 लाख है. चौथा प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होगी. लीगल प्रोविजन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शंस विल बी फॉलोड. No, can't see last line. Nehal Ravi Shaji, no problem. I'll just. Are you now able to see the last line? All the relevant legal provisions, notifications, circulars, and instructions must be followed while processing these claims. Okay. Many questions are coming up with respect to refund. So whatever information I had with respect to refund, I have already showcased you, and we need to wait for the date, that is 30th April. So if 30th April till 30th April your refund comes, your client is actually very lucky then. So this is actually a very good information for everybody. And the government has said that the amount of refund, total amount is 18,000 crores. 18,000 crores. Nice step by the government. Yes, yes, perfect. So we should all wait till 30th April. And since it's an automatic refund, we don't need to do anything. You only can do one thing. You can just check the status of your refund while view refund status. Okay. So next, ITC restriction rule 36 sub rule 4. Sir, the limit of 5 lakh also for GST. No, Himanshu ji, there is no limit given for GST refund. Only income tax is 5 lakh. Okay. So ITC restriction rule 36 sub rule 4. What does it says? ITC restriction. सर कुछ चेंजेस आए हैं इसमें, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं एक बार. Nehal Ravi Shaji, can you please share the press release with us? Nehal ji, I have already mentioned the press release number. I will again display for you. Wait, just a second. So it was released on 8th April. You can just check the press release of Ministry of Finance on 8th April. This was the press release, and an instruction was also issued 9th April. So 9th April को instruction issue किया गया है 03/2020 कस्टम की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से रादर. ओके, आई विल गो नेक्स्ट. आईटीसी रिस्ट्रिक्शन रूल 36 सब रूल 4. So I can see almost now 1500 professionals are there. Thank you so much. I really appreciate you have taken out so much of time. I know many of your children, many of your children would be, asking you to stop this presentation, or maybe trying to irritate you at this point of time. Please ask your children or your other family members just to focus, for the next half an hour or 40 minutes. ITC restriction rule 36 sub rule. Vipul ji, I can attend question answer at the end of the session. Thank you. ITC restriction rule 36 sub rule 4. Notification number 49 central tax. Now first we will understand what does rule 36 sub rule 4 states. रूल 36 सब रूल 4 कहता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं. नोटिफिकेशन नंबर 49 आया था सर 9 अक्टूबर को, उसमें ये रूल 36 सब रूल 4 का इंट्रोडक्शन किया गया था. सो इट सेज इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ व्हिच हैव नॉट बीन अपलोडेड. जो डिटेल अपलोड नहीं करी गई हैं सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंडर शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस. तो 20% ये लिमिट थी. फिर एक नोटिफिकेशन आया 75. सर आ रहा हूं, 10% ही है, मेरे को पता है सर, आई नो 10% है. सो नोटिफिकेशन, आई नीड टू कनेक्ट दी स्टोरी, राइट, आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो 75 नंबर नोटिफिकेशन 26 दिसंबर को आया, जिसमें बोला गया कि ये 20% से हटके अब 10% लिमिट हो गई है. सो 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट. ओके, दिस इज रूल 36 सब रूल 4. आई होप यू ऑल नो दैट. ओके, मोहित भूतड़ा जी, थैंक यू. So finally a notification has been released on 3rd April number 30/2020. It states that please read carefully. Provided that the said conditions shall apply. Which conditions are 10% of the eligible credit for the period Feb, March, April, May, June, July, August. Feb से लेके अगस्त तक की ये जो कंडीशन है रूल 36 सब रूल 4 की, ये आपको जाके सितंबर में फॉलो करनी है. समझ आ गया सर? नहीं समझ आया प्लीज मेरे को बताइएगा, मैं दोबारा से समझा देता हूं, एक बार हिंदी में भी समझा देता हूं. फेब से लेके अगस्त तक का जो क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट होगा, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक साथ जुट करके फेब से अगस्त तक का जितना भी एडजस्टमेंट है वो जाके आप सितंबर में करिएगा. ये प्रोविजन, ये नोटिफिकेशन क्यों आया मैं आपको बताता हूं. सर जब जीएसटीआर 1 ही नहीं भरी जाएगी
तो 2A में डेटा नहीं आएगा। 2A में डेटा नहीं आएगा तो रूल 36 सब रूल 4 आप फॉलो कहां से करेंगे? आप समझ गए? इस वजह से इसकी तारीख भी एक्सटेंड कर दी गई है। तनुज जी, कैन यू एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल? फॉर श्योर सर, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। आई एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। सो लेट्स से my ITC as per books, my ITC as per books in Feb, March, April, May, June, July, August was 1 lakh each. Okay, was 1 lakh each. Eligible ITC as per my books. As per my books was 1 lakh each for all of these months. Can I claim in GSTR 3B 1 lakh? Can I claim? Yes, because what it says is दी कंडीशन जो आपको 36 सब रूल 4 चेक करना है वो क्यूमुलेटिव जाके सितंबर में करना है। सो लेट्स से ITC as per my books was 1 lakh, ITC as per 2A was 80,000 in all these months, right? So 20,000 जो लेस है वो मैं सितंबर में जाके एडजस्ट कर सकता हूं। Clearly says provided that the said condition shall apply cumulatively for the period Feb to August 2020, the return form GSTR 3B for the tax period shall be पृथ्वी जी, रूल 36 सब रूल 4 की बात हो रही है, मेरे को कमोडिटी समझ नहीं आया। मयंक गुप्ता जी, लक्की जी प्लीज दोबारा समझा दिए सर, मैंने 3 बार समझा दिया। चलिए नेक्स्ट, समझ आ गया सर। क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट है फेब से अगस्त तक का, अब आपको सितंबर में करना है। सो 10% वाली कंडीशन आपको फेब से अगस्त तक में नहीं देखनी है, अब जाके आपको डायरेक्ट सितंबर में ही देखनी है। आशीष कमथाने जी, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर आईटीसी फॉर लास्ट नवंबर दिसंबर जैन। नहीं सर, सिर्फ फेब से अगस्त तक का बोला गया है, पहले जो चला आ रहा है वो तो रहेगा सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज, रादर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आप मुझसे पूछे जा रहे हैं, मैं भी एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आपसे। सो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, प्लीज बताइए। बताइए सर। बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे सर, तो मैंने सोचा एक मैं आपसे भी पूछ लेता हूं। प्लीज आंसर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो बिल्कुल सही आंसर आया सर, 100% जा रहा है। परफेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप सबको समझ आ गया है। 100% लोगों ने बोला है सितंबर 2020 इज दी परफेक्ट आंसर। ग्रेट सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज एक सेकेंड, यूट्यूब सर, मैं यूट्यूब के वीडियोस भी करता हूं सर, आपको यूट्यूब का चैनल मैंने लिंक दे दिया, आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज वेदर जीएसटी लिवेबल, वेदर जीएसटी, ये 2 बार क्यों आ गया सर? अरे ये कैसे हो गया? नो प्रॉब्लम। चलिए, वेदर जीएसटी इज लिवेबल ऑन डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, बताइए सर, यस या नो? डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन पे जीएसटी लगता है या नहीं लगता? बहुत सारा क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे। नरेंद्र जी वीडियो प्रॉब्लम, सर रिफ्रेश कर लीजिए। गीतांजलि जी यस नो, पंकज जी नो, अनीश जी नो, शरण जी नो, अनिरुद्धा जी, सी कितना कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन पे, यस नो यस नो। सो नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज। डीएम भत्तर जी, इट शुड नॉट सर, शुड नहीं, शैल होना चाहिए वहां पे, ठीक है। प्लीज अब चैट बंद कर दीजिए, 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है, लॉ क्या कहता है। नोटिफिकेशन नंबर 13 आया था सर, 28 जून 2017, लॉन्ग बैक। इट सेज कि आरसीएम लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा बाय द रिसिपेंट ऑफ द सच सर्विसेज। एंट्री नंबर 6 है उसमें, इस नोटिफिकेशन नंबर में एक एंट्री नंबर 6 है, वो कहता है सर्विसेज, प्लीज ध्यान रखिएगा, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी or a body corporate to the said company or the body corporate located in the taxable territory। हमारा एक्ट कहता है कि आरसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा अगर डायरेक्टर, कंपनी का एक डायरेक्टर सर्विसेज दे रहा है उस कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, ये हमारा लॉ कहता है, ठीक है सर। सब देखेंगे, सारा चीज एनालाइज करेंगे। नरेंद्र जी, कंटिन्यू वीडियो नॉट विजिबल नॉट ऑडिबल, प्लीज रिफ्रेश। सत्यनारायण जी, इफ टीडीएस okay, so first is notification says this। Next, there was one ruling, advance ruling, which came on 25th September 2019, Alcon Consulting Engineers, there was one advance ruling, it says
Whether RCM is applicable? Yes. The advance ruling says yes. Since the consideration paid to the director is relation to the services provided by the director. सर ये वाली एडवांस रूलिंग सिंपल मोटी भाषा में ये कहती है कि डायरेक्टर्स की अगर सर्विसेज या रेम्युनरेशन दिया आपने उन्हें जो भी दिया उस पे आरसीएम लग जाएगा। ठीक है सर, ये तो ये कहती है। अजय जी नो वॉइस, प्लीज रिफ्रेश, प्लीज रिफ्रेश। सर ये एआर है 25 सितंबर, ठीक है। अनदर एआर के रिसेंटली क्लेक्राफ्ट, आई थिंक दिस यू वुड हैव हर्ड, अभी रिसेंटली आई है सर। सो पहली थी मैं आपको रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट वाज एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स, सेकंड वाज क्लेक्राफ्ट इंडिया। सो इट आल्सो सेड द सेम पार्ट, सेम थिंग। जीएसटी एप्लीकेबल अंडर आरसीएम? यस, they also say yes, but I totally disagree with both these advance ruling. I totally disagree. I'll tell you why. Now your question would be whether this advance ruling is actually applicable to you or actually applicable to your client. Whether this advance ruling is applicable to your client. The answer is no. An advance ruling pronounced by AAR or AAAR shall be binding only on the applicant who has sought the advance ruling and on the concerned officer. This clearly means that an advance ruling is not applicable to similarly placed other taxable person in the state. It is only limited to the person who has applied for an advance ruling. ठीक है सर, सबसे पहला तो डाउट ये क्लियर हो गया, एडवांस रूलिंग सिर्फ उस पर्सन पे अप्लाई होती है जिसने एडवांस रूलिंग मांगी है। ठीक है सर, सबसे पहले चीज तो ये एडवांस रूलिंग बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, क्या मैं अप्लाई करूं या नहीं, शुड आई अप्लाई और नॉट दिस एडवांस रूलिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड, इट इज नॉट बाइंड। ठीक है, बाउंड नहीं है सर, आप बाउंड नहीं हो। सेकंड, आई विल टेल यू वन सुप्रीम कोर्ट केस। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट से आगे तो कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का केस बताता हूं सर मैं आपको। आई विल टेल यू वन सुप्रीम कोर्ट केस, ESIC वर्सेस वीनस अलॉय प्राइवेट लिमिटेड। इट सेज the Supreme Court has held that directors of a company who are receiving remuneration would fall within the definition of an employee as provided under section 2 of ESIC Act. ये सुप्रीम कोर्ट का केस है सर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है एक डायरेक्टर अपनी कंपनी का एम्प्लॉय होता है अंडर ESIC एक्ट। ठीक है, I will tell you how to recognize whether RCM applicable, whether rather GST is leviable or not. I will tell you 4 conditions. Please listen carefully. First condition, there has to be a substantial document. Substantial document इसको बोलते हैं जब एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं, आप उसके साथ एक ऑफर लेटर शेयर करते हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। There has to be one offer letter, there has to be one agreement, there has to be one document in between your director and in between your company. First, so substantial document होना चाहिए कि वो डायरेक्टर आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है। Second, इट हैज टू बी अ होल टाइम डायरेक्टर, वो फुल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, थर्ड, उसका टीडीएस अंडर सेक्शन 192 शुड बी डिडक्टेड। टीडीएस शुड बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192, नॉट अंडर 194J, बिकॉज 194J में सर्विसेज आ जाएगा और सर्विसेज आते ही फिर आपका नोटिफिकेशन नंबर आरसीएम वाला लग जाएगा। समझ गए सर, 3 कंडीशंस हो गई हैं। चौथी कंडीशन ये है कि उसको सैलरी ही दी जा रही हो। ऐसा ना हो सर हर 10 दिन में आप उसे कुछ कंसल्टेंसी फीस दे देते हैं, आप कुछ सर्विस रेवेन्यू, कुछ सर्विस फीस दे देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ सैलरी व्हिच शुड गो ऑन इन हिज बैंक अकाउंट। सो दीज 4 कंडीशन प्लीज नोट डाउन। कंसल्टेंसी नहीं होना चाहिए, करेक्ट दीपक जी, कंसल्टेंसी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एन एम्प्लॉय। ठीक है, सो एम्प्लॉय अगर है जीएसटी नहीं लगेगा। माय पॉइंट ऑफ व्यू जीएसटी नहीं लगेगा। Law has an interpretation of everybody. Everybody has the right to give interpretation. As per my interpretation, GST will not be leviable on director's remuneration. Mamta ji, kindly repeat the conditions. First, there has to be a substantial document between the director of your company and your company. First, so there has to be an offer letter or terms and condition where it is stated that this whole-time director is your employee. First, second, 192 हिंदी में रिपीट कर देता हूं सर, मुझे लग रहा है आई थिंक इंग्लिश। श्रीधरा जी, 192 is not applicable as below taxable income. How it will be treated? Sir, if you have a substantial document in between your director and in between your company, that is enough. That is enough. If PF is being deducted, that is also a proof. That is also proof. मैं हिंदी में भी समझा देता हूं, बहुत लोगों को शायद हिंदी में समझ, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन है आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें लिखित में होना चाहिए कि वो आपकी कंपनी का एक एम्प्लॉय है, डायरेक्टर आपकी कंपनी का एक एम्प्लॉय है
सेकेंड कंडीशन है उसका टीडीएस 192 में कटना चाहिए, 194J में नहीं, बिकॉज 194J इज फॉर सर्विसेज, 192 इज फॉर सैलरी। थर्ड पॉइंट है उसको जो आप पैसा देंगे वो सिर्फ एक सैलरी के रूप में देंगे, ऐसा ना हो कि हर 10 दिन में, हर महीने के 10 दिन में आप कुछ ना कुछ अमाउंट उसे देते जा रहे हैं। सो एक ही अमाउंट जाना चाहिए मंथ एंड पे जो कि सैलरी होना चाहिए, ठीक है सर। चौथा पॉइंट ये है वो एक फुल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो 10 दिन आपकी कंपनी में काम करता है फिर 10 दिन किसी और कंपनी में जाके काम करता है, बिकॉज वो फिर सर्विसेज हो जाएंगी, ठीक है। आई थिंक मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा दिया है, एंड आई होप ये आपको थोड़ा समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया आप बाद में भी मेरे से पूछ सकते हैं। Bose Chale Durai, Bose ji, we were from South India, we prefer English, so we able to understood completely. Thank you, sir. Thank you. Now coming to the most important point, relaxation and compliance. Sitting fees paid to directors liable to RCM. नमन जी हो सकता है सर, it depends on all these 4 conditions जो मैंने बताया। जगरूप जी बहुत खूब, thank you, thank you, thank you. Queries I'll take at the end of the session. Please queries I'll take at the end of the session. Let's not disturb in between because everybody is sitting at their precious time. Relaxation compliance date for GSTR 3B. 3B में क्या क्या रिलैक्सेशन आई हैं ये देख लेते हैं एक बार। First, whether the due date to file GSTR 3B for Feb, March, April has been extended. Yes or no? Please बताइए। 3B की ड्यू डेट फेब, मार्च और अप्रैल की एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है? यस या नो बताइए सर, चैट में ही लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए यस और नो। 3B डेट हैज बीन एक्सटेंडेड, यस और नो? सब गलत है सर, सब गलत है, सब गलत। बहुत लोग लिख रहे हैं यस यस, सब गलत है। यस यस गलत है सर, सब गलत है। यस नहीं, एक्सटेंड नहीं हुई है सर, ये देखिए ये नो है। ये सर्कुलर आ चुका है, 3 अप्रैल को आया था सर ये सर्कुलर, प्लीज नोट कर लीजिए। द डेट ड्यू डेट ऑफ 3B हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड। द सर्कुलर नंबर 136 क्लियरली स्टेट दैट द ड्यू डेट्स फॉर फर्निशिंग 3B फॉर द मंथ्स ऑफ फेब, मार्च एंड अप्रैल हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड थ्रू एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस। बहुत लोग कह रहे हैं अरे सर गलत बता रहे हैं यू आर टेलिंग रॉन्ग, यू मस्ट बी थिंकिंग why I am telling wrong, why I am telling wrong. Now I will tell you what. The due date has not been extended, the new compliance date has been issued. There is big difference. समझिए ध्यान से, बहुत डिफरेंस है सर। ड्यू डेट नहीं बढ़ाई गई है, कंप्लायंस डेट ला दी गई है। एक कंप्लायंस डेट लाई गई है, नई कंप्लायंस डेट। मैं समझाता हूं क्या है। सो प्लीज अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी बोलता है सर आप सब टैक्स प्रोफेशनल हैं, यू ऑल आर टैक्स प्रोफेशनल्स, यू शुड नो द लॉ लैंग्वेज। द ड्यू डेट हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड। सर्कुलर आपके सामने है, नंबर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कोई रिलैक्सेशन दी गई है जीएसटीआर 3B में? ये बताइए सर, रिलैक्सेशन दी गई है? बताइए यस और नो, यस और नो बताइए सर, बताइए प्लीज, यस और नो। Yes, yes, yes. Correct, 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 correct. Yes, okay. Yes, relaxation has been given in GSTR 3B. What is the relaxation? Lower rate of interest or waiver of interest, waiver of late fee, and waiver of penalty. So relaxation has been given. I agree. Due date has been extended. I don't agree. I totally disagree. So yes, relaxation has been given, but due date has not been extended. Okay. So lower rate of interest or waiver of interest, waiver of late fee, waiver of penalty or late filing of return if certain condition is fulfilled. What is that condition now? It says, आपको मैं हिंदी में समझा देता हूं। लेट फी वेव करी गई है, हटा दी गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया गया है या हटा दिया गया है अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो। लेकिन कुछ कंडीशन इनडायरेक्टली एक्सटेंडेड। प्रदीता जी सर इनडायरेक्टली एक्सटेंड नहीं है सर, ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं कर दी गई, ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं है। प्लीज मैं आपको लॉ की लैंग्वेज पढ़ के बताऊंगा सर, वहां पे सर्कुलर दिया गया है, क्लियरली उसमें लिखा है ड्यू डेट नहीं है। ऑन लेट फाइलिंग और रिटर्न अगर कंडीशन फुलफिल करते हैं तो ये 3 चीज आपको रिलैक्स हो जाएगा। अब उसकी कंडीशन क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। फेब, मार्च और अप्रैल, सबसे पहले हम बात करेंगे 3 मंथ्स की, फेब, मार्च एंड अप्रैल। सो वी विल बी टॉकिंग फॉर फेब, मार्च एंड अप्रैल, we will be talking for Feb, March and April. Okay. Nilesh Parmar ji, उत्तम जी, ड्यू डेट इज कंप्लायंस डेट ओनली। आई टोटली डिसएग्री सर। ड्यू डेट आप लॉ में जाके देखिए, ड्यू डेट का टर्म है सर एक्सटेंडेड डेट। यस आई एग्री। सो व्हाट इज द एक्सटेंडेड डेट? फर्स्ट केस इज मोर देन 5 करोड़।
more than 5 crore. So I'll not be taking any questions now because ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 5 करोड़ से अगर ज्यादा आपकी टर्नओवर है तो फेब की जीएसटीआर 3B ड्यू डेट क्या होती है सर? 20 मार्च। ठीक है सर, फेब की ड्यू डेट 20 मार्च होती है। अब जो नई कंप्लायंस डेट है वो है 24 जून। अंडरस्टूड? So the compliance date for Feb month for GSTR 3B, if your turnover is more than 5 crore, is 24th June. So interest will be applicable till 4th April. अगर आप 4 अप्रैल तक अपनी GSTR 3B भर देते हैं, किस केस में? आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, फेब की GSTR 3B अगर आप 4 अप्रैल तक भर देते हैं तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 4 अप्रैल के बाद भरते हैं तो 9% पर एनम लग जाएगा, डेली बेसिस पे कैलकुलेट होके। समझ गए सर? ठीक है। 24 जून तक आप फाइल कर सकते हैं अपनी 3B इन केस ऑफ मोर देन 5 करोड़। मार्च के लेट फी निल हो जाएगी। मार्च के केस में ड्यू डेट अगेन 20 अप्रैल ही है, कंप्लायंस डेट आपकी 24 जून हो जाएगी। इंटरेस्ट सेम केस है। मार्च की रिटर्न मैं हिंदी में समझा देता हूं। मार्च की रिटर्न अगर आप 5 मई तक भर देते हैं जीएसटीआर 3B तो आपका इंटरेस्ट रेट निल है। अगर उसके बाद भरते हैं तो फिर 9% पर एनम के हिसाब से लगा दिया जाएगा लेट फी। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस कैलकुलेशन, पूरा एग्जांपल में दूंगा। सो इज दिस क्लियर? फर्स्ट टेल मी दिस, more than 5 crore, this case is only more than 5 crore, only more than 5 crore। GSTR 1 आ रहा हूं सर, एक एक करके आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। थैंक यू। ओके, दिस इज क्लियर राइट? नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मैं एग्जांपल देता हूं। क्या एग्जांपल है? सर्कुलर ने ही खुद एग्जांपल दे दिया है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज, मेरा टैक्स पीरियड मार्च था, ठीक है। जीएसटीआर 3B मोर देन 5 करोड़, मेरा मार्च मंथ का जीएसटीआर 3B है। ड्यू डेट वाज 20 अप्रैल। फाइलिंग डेट, सो आई फाइल्ड ऑन 2 मई। आई फाइल्ड ऑन 2 मई। वेदर कंडीशन फुलफिल्ड? यस। क्यों फुलफिल हुई सर? 24 जून इसकी डेट थी, ठीक है सर। मैंने 2 मई को ही, सॉरी मार्च की बात करें, मार्च की थी, 24 जून ही डेट थी, मैंने अपना 2 मई तक फाइल कर दी, ठीक है सर। कंडीशन फुलफिल्ड, इंटरेस्ट इज 0। नेक्स्ट, ड्यू डेट अगेन वाज 20 अप्रैल, आई फाइल्ड ऑन 20 जून। वेदर कंडीशन फुलफिल्ड? यस, the condition is fulfilled, but since the delay is more than 15 days, so zero interest for 15 days plus interest rate at the rate 9% per annum for 46 days. Ajay ji, no voice, please refresh, thank you. Final and last example, 20th April was the due date, I filed on 30th June। सर मैंने 24 जून भी छोड़ दी, मैंने तो 30 जून को फाइल करी, 30 जून को फाइल करी। आपको पता है अब क्या होगा सर? आपको पता है सर अब क्या होगा? 71 डेज का इंटरेस्ट लग जाएगा, वो भी 18% के रेट से। यू अंडरस्टूड? अब आप ड्यू डेट का मतलब समझ गए? व्हाई आई सेड इफ टेक्स्ट, श्रीधरा जी, इफ टेक्स्ट डिपॉजिटेड विद इन द डेट बट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन 3B इज फाइल्ड आफ्टर 15 डेज, वेदर इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल? सर जीएसटीआर 3B पे है वो, आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सो लास्ट वाला एग्जांपल आप समझे? लास्ट एग्जांपल इज वेरी गुड। इफ यू हैव फाइल्ड योर जीएसटीआर 3B इन केस ऑफ टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ आफ्टर द कंप्लायंस डेट वाज 24 जून, आई फाइल्ड ऑन 30th जून, interest will be applicable at the rate of 18% per annum, that too from the due date। so 71 days का इंटरेस्ट यहां पे लग जाएगा। आ रहा हूं सर, 5 करोड़ से कम पे भी आ रहा हूं। सो दिस एग्जांपल वाज फॉर मोर देन 5 करोड़। ओके, नेक्स्ट, so what is the condition for relaxation GSTR 3B? same question for more than 1.5 crore up to 5 crore। second case is more than 1.5 crore up to 5 crore। okay, second case is more than 5 crore up to more than 1.5 crore up to 5 crore। Feb, if GSTR 3B is filed by 29 June, डेट नोट कर लीजिए सर, 29 जून है, 29 जून इसकी कंप्लायंस डेट दी गई है, मार्च की भी 29 जून है और अप्रैल की 30 जून है। ये एक दिन इसलिए बढ़ाया गया है जैसे पोर्टल पे लोड ना पड़े।
Can you share the PPT? Sir, I will share the PPT at the end of the session. Please stay with us. Please be with us. Very well explained with example. Thank you, sir. Thank you. So Feb, March, April, if GSTR 3B is filed by 29 June or 30th June, interest is nil, late fee is nil. This is the case of more than 1.5 crore up to 5 crore. Turnover means aggregate turnover. Yes. If aggregate turnover in the preceding financial year, please note, preceding financial year की aggregate turnover देखनी है सर आपको, पिछले साल की aggregate turnover, ठीक है. आगे चलो सर, ये वाला केस क्लियर है. चलिए नेक्स्ट केस. Up to 5 crore. If aggregate turnover in the preceding financial year is up to 1.5 crore. अगर 1.5 करोड़ से कम है तो कितनी आपकी कंप्लायंस डेट होगी? ठीक है सर, इसको देख लेते हैं. एक सेकेंड. हाँ जी, चलिए अब 1.5 करोड़ तक का देख लेते हैं. फेब की अगर आप फाइल करते हैं 30 जून तक, मार्च की फाइल करते हैं 3 जुलाई तक, और अप्रैल की फाइल करते हैं 6 जुलाई तक. वाई 3 डिफरेंट डेट्स? सर वो 1.5 लाख यूजर्स भी तो आ जाते हैं ना फिर. अगर एक ही डेट रख देंगे तो 1,50,000 यूजर्स विल इरिटेट यू ऑन द पोर्टल. So that's why they have given 3 different dates. Narinder ji, is any interest to be paid if turnover is up to 5 crore? No. The condition is you have to file your GSTR 3B up to these compliance dates. अगर आप इन डेट्स तक अपनी GSTR 3B फाइल कर देते हैं, इन केस ऑफ टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, ना कोई इंटरेस्ट लगेगा, ना कोई लेट फी लगेगी. सिंपल. ठीक है सर, चलिए समझ आ गया सर. 3B खत्म हो गई है, GSTR 3B खत्म कर चुका हूं. तीनों केस ले लिए हैं, 5 करोड़ से ज्यादा, 1.5 to 5 करोड़, और 5 करोड़ से कम, 1.5 करोड़ से कम. अब आते हैं मे पे. GSTR 3B फेब मार्च अप्रैल समझ गए थे सर. फेब मार्च अप्रैल आई एम डन. नाउ मे. ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड. यस, फॉर मे एज वेल. मे की भी ड्यू डेट सर एक्सटेंड कर दी गई है. ठीक है, मे की ड्यू डेट क्या है वो आपको मैं समझा देता हूं. सो दिस इज द ड्यू डेट फॉर मे. If you remember, we need to file GSTR 3B state-wise 20, 22nd, 24. Similarly, for May also, they have given this clarification. So for turnover more than 5 crore, 27 June. For less than 5 crore, depending on the states. Okay, sir. Good presentation. Thank you, sir. Thank you. I'm just trying my level best to make you understand or explain. Sir, PPT, PDF बहुत मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन, बहुत सारी आ रही है, WhatsApp ग्रुप्स में भरी पड़ी है. पढ़ने का टाइम नहीं है सर. अगर पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, इतना कुछ लिखा है ना उसमें समझ ही नहीं आता सर. पूरी बेयर एक्ट चिपका देते हैं. कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है सर. वी ऑल हैव बुक्स, वी ऑल हैव वेबसाइट्स, वी कैन रीड आवरसेल्फ, बट इट इज जस्ट अबाउट हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड. सुपर्ब, सुपर्ब. थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक यू. अभिनव जी, व्हाट अबाउट लेट फीस इफ फाइल्ड आफ्टर कंप्लायंस डेट? सर फिर तो लगेगी ना, तभी तो वो कंडीशन है कि कंडीशन यही है कि अगर आप कंप्लायंस डेट तक फाइल कर देते हैं तो कोई लेट फी और इंटरेस्ट नहीं लगेगा. सुनील अग्रवाल जी, राजस्थान. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मे क्लियर सर. फेब, मार्च, अप्रैल, मे 3B इज डन. आगे बढ़ू सर. नेक्स्ट. ओके. GSTR 1. GSTR 1, व्हाट इज द रिलैक्सेशन गिवन? सो GSTR 1 मार्च, फेब की नहीं है सर. फेब की डेट जा चुकी थी जब तक कोरोना वायरस आया था. सो मार्च, अप्रैल, मे. आई विल रिपीट, मार्च, अप्रैल, मे एंड क्वार्टर जैन टू मार्च. ठीक है सर. मंथली वालों के लिए मार्च, अप्रैल, मे, और क्वार्टर वालों के लिए जैन, फेब, मार्च वाला क्वार्टर. व्हाट इज द ड्यू डेट? पहले तो सीधी सी सर बात है, ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है. प्लीज, ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है. अगेन सिर्फ रिलैक्सेशन दिया गया है लेट फीस का. ठीक है सर, लेट फीस का रिलैक्सेशन दिया गया है GSTR 1 में. सो कंडीशन क्या दी गई है अगर लेट फी वेव करानी है तो? मंथली GSTR 1 है, मार्च की 30 जून तक फाइल कर दीजिए, अप्रैल की 30 जून तक कर दीजिए, मे की आप 30 जून तक कर दीजिए. ठीक है, ठीक है सर. अरविंद जी, नो वॉइस, प्लीज रिफ्रेश. फॉर अप्रैल, सत्यनारायण जी, क्वेश्चन रिटर्न प्रीवियस फाइनेंशियल इज यस, यस सर. एग्रीगेट टर्नओवर हैज टू बी सीन फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का देखना है आपको. सो फाइल्ड बाय 30 जून. ठीक है सर. नो लेट फी. लेट फी आपकी इसमें निल हो जाएगी. ठीक है, ठीक है सर. मंथली का समझ आ गया आपको. क्वार्टरली की बात कर लेते हैं. जैन, फेब, मार्च का जो क्वार्टर है उसकी GSTR 1. कैन यू प्लीज एडजस्ट योर स्क्रीन? सर मैं अपना कैमरा बंद कर दूंगा अगर अच्छा नहीं लग रहा तो.
चलिए मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा अगर आपको फिर भी कुछ देखना है तो, ठीक है सर। सेशन के एंड में आई शेयर दी पीपीटी। जैन फेब मार्च के केस में क्वार्टर में 30 जून कर दी गई है, सेम 30 जून। सो जीएसटीआर 1 की 30 जून ही है, चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो, ठीक है। चलिए, सो लेट फी हो जाएगी इसमें आपकी निल। अश्विन जी, इंटरेस्ट ऑन ग्रॉस लाइबिलिटी और ऑन नेट लाइबिलिटी? सर आई टेक दिस क्वेश्चन, आई हैव दिस क्वेश्चन। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे वो मेरी इसमें पीपीटी में जरूर होगा, प्लीज बस आप बने रहिए सर हमारे साथ, प्लीज स्टे विद अस। अप्रैल ऑनवर्ड्स के लिए टर्नओवर 1920 शैल बी काउंट? यस सर, बिकॉज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपका 1920 हो जाएगा। वेरी गुड पॉइंट। यस, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर अप्रैल वुड बी 1920 सर, 1920 हो जाएगा। वेरी गुड, यस यस यस, 1920, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 हो जाएगा। ओके, सो 9 जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C। सो R1 हो गया सर, 3B हो गया है, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन हो गया, ई वे बिल हो गया, रूल 36 सब रूल 4 हो गया, और कंपोजिशन डीलर्स हो गया। नाउ जीएसटीआर 9 एंड 9C, मेनी पीपल वर आस्किंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 वेदर एनी रिलैक्सेशन? यस यस। So the due date to file GSTR 9 and 9C for the financial year has been extended to 30th June 2020. Notification number 15 sub 2020 dated 23rd March 2020. Sir, I always take the reference of notifications. Yes, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता सर। मैंने बहुत व्हाट्सएप मैसेज देखे हैं, फॉरवर्ड करते हैं सर सब, बस कोई रेफरेंस नहीं होता, कुछ भी फॉरवर्ड हो जाता है, कभी ड्यू डेट भी खुद से एक्सटेंड हो जाती है। तो जून 30 2020, चंद्रशेखर जी 19 नहीं 20, 2020 जीएसटीआर 9C 5 करोड़। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम। सो मेनी ऑफ द टैक्स प्रोफेशनल्स आस्क दिस क्वेश्चन, whether every registered person needs to furnish GSTR 9C for the financial year 18-19. One of my very good friends, Sri Satyanarayan ji, also asked this question, so I'll be answering this. No, notification number 16, please note this notification number. Many of the tax professionals has not referred to this notification number. It says if anybody is facing network problems, there is a button named as reconnect, refresh करके है सर, प्लीज उसे reconnect या refresh कर लीजिएगा। As per notification number 16, provided that every registered person whose aggregate turnover during the financial year 18-19 exceeds 5 crore, ठीक है सर। पहले प्रेस रिलीज आई थी जिसमें एमएसएमई वर्ड लिख दिया गया था, एमएसएमई, उससे बहुत कंफ्यूजन आ गया था। देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एमएसएमई वर्ड। प्लीज नोट दैट डाउन that in the notification there is no such word given, no such word. The word MSME was only given in the press release, so we need to follow the notification. Okay, shall get his accounts audited, the same language. So 9C अगर 5 करोड़ से ज्यादा है 18-19 में टर्नओवर तो ही देखना है, ठीक है सर। सर टर्नओवर 18-19 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19, ठीक है सर। 5 करोड़, यस 5 करोड़, नोटिफिकेशन आ गया है। सो पता तो सबको था सर, प्रेस रिलीज आ गई थी, बट उसमें एक तो एमएसएमई वर्ड लिख दिया गया था और इट वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन, सो दैट्स व्हाई। नाउ द लास्ट पॉइंट इज रिलैक्सेशन इन कंप्लायंस ऑफ जीएसटीआर 5, 6, 7 एंड 8। इनका क्या होगा सर? जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6। आशीष जी, मुझे ये पीपीटी मिल सकती है? अगर आप यूं ही प्यार बनाए रखेंगे तो जरूर मिलेगी सर। सेशन के एंड में पक्का दूंगा सर, थोड़ी देर तो रुक जाइए, 15-20 मिनट का सेशन बचा है, प्लीज रुक जाइए, पक्का दूंगा आपको, ठीक है। जीएसटीआर 5, 6, 7 एंड 8 फॉर मार्च, अप्रैल एंड मे, वेदर द ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड, whether the due date has been extended? Yes, notification number 35 says where any time limit for completion or compliance of any action. सर अब ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। ये कहता है पूरे 20 मार्च से लेके 29 जून तक, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा, अगर 20 मार्च से लेके 20 जून तक इस पीरियड में कोई भी आपकी टाइम लिमिट आ रही है, ठीक है, तो उसको एक्सटेंड करके कर दिया जाएगा 30 जून, ठीक है सर। अगर इस पीरियड के बीच में कोई भी डेट आ रही है तो उसको 30 जून 2020 कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका मोटी मोटी भाषा में ये पॉइंट निकलता है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, अब आपका सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं सर, क्या नोटिस आएगा, अपील आएगी, क्या क्या आएगा इसमें? कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग,
प्लीज सुन लीजिए सर, आपको सब खुद ही समझ आ जाएगा। कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर, इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called under the provision of the act stated above, filing of any appeal, reply or application, or furnishing of any report, document, return statement। ध्यान से सुनिए सर, लॉ की लैंग्वेज है। फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है सर। और सच अदर रिकॉर्ड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट स्टेटेड अबव। समझ गए सर? इन सबकी ड्यू डेट 30 जून कर दी गई है। इन सबकी ड्यू डेट, फॉर ऑल ऑफ दीज द ड्यू डेट इज नाउ 30 जून 2020। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। This notification is very important. However, the language of this notification is bit technical, so इसलिए I am trying to make you understand in very simple language. Refund application, सर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, आप खुद समझिए सर, थोड़ा सा समझिए, लैंग्वेज समझिए। प्रोसीडिंग, ऑर्डर, नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन, अप्रूवल, अपील, रिप्लाई, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, सबकी डेट 30 जून कर दी गई है। 5 करोड़ टर्नओवर जीएसटी एंड पैन वाइज है सर, एग्रीगेट टर्नओवर है। यूट्यूब पे डालेंगे क्या सर? मिलन जी, वोंट इट क्लैश विद अदर नोटिफिकेशन? नहीं सर, एक्सेप्शन भी दिया गया है, एक्सेप्शन है, बट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द कंप्लायंसेस ऑफ द प्रोविजन। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ये अप्लाई नहीं होता, पहली चीज, फर्स्ट एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है, कुछ सेक्शंस हैं जिन पे ये अप्लाई नहीं होता, मैं आपको पूरा शेयर कर दूंगा सर, आप आराम से देख सकते हैं इसको। थर्ड इज रिटर्न्स पे अप्लाई नहीं होता, बिकॉज रिटर्न्स की कंप्लायंस डेट पहले से ही बढ़ा दी गई है, ठीक है सर। सेक्शन 68 पे अप्लाई नहीं होता, ई वे बिल का जो मूवमेंट है, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स रादर, सेक्शन 68 इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स है। तो आप समझ गए, इन चीजों पे ये अप्लाई नहीं होता है, बाकी सब चीजों की ड्यू डेट 30 जून कर दी गई है। हाँ, 5 करोड़ पैन वाइज है सर, 5 करोड़। दिस इज इन रेफरेंस टू रिटर्न। सर रिटर्न में मैंने लिख दिया, एक्सेप्शन है, सेक्शन 39 पे ये अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 39 की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, मैं वही आपको समझाना चाह रहा था। सिर्फ एक कंप्लायंस डेट दी गई है, जो मैं आपको पहले से ही समझा चुका हूं, ठीक है सर। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये स्क्रीन सब कह रहे हैं दोबारा दिखा दीजिए, नोट कर लीजिए सर, फोटो खींच लीजिए। मेरी भी फोटो आ जाएगी सर, प्लीज, ठीक है। चलिए, कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, ऑर्डर, नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन, अप्रूवल, अपील, रिप्लाई, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है सर। क्या डेट है एक्सटेंड? सर ये लिखा है, अगर 20 मार्च से 29 जून के बीच में ये कुछ भी पड़ रहा है तो 30 जून कर दी गई है। मोहित जी प्लीज ड्रिंक वाटर। अरे सर आप सब साथ हैं सर, पानी की क्या जरूरत है। बस यही दरख्वास्त है सर, घर में रहें प्लीज, बाहर मत निकलिए। लॉकडाउन आपकी सेफ्टी के लिए सर, आपके अगेंस्ट जाने के लिए नहीं है, प्लीज सपोर्ट करिए। चलिए वो सब बात मैं करूंगा जरूर एंड में, अभी पहले टॉपिक पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, so there were some other recommendations also given in 39 GST Council meeting. Many recommendations were given, but there are some recommendations for which notification has not been issued till date. सर 14 मार्च को ये काउंसिल मीटिंग हुई थी, बट उसमें नोटिफिकेशंस ही नहीं आए अभी तक, 5 चीजों के या 4 पॉइंट्स के, मैं आपको अभी बता देता हूं। उसके नोटिफिकेशंस अभी तक नहीं आए, ठीक है, बट ये प्रेस रिलीज में है, ठीक है। Please don't ask me whether this is applicable from now or not, because notification has not been issued for these recommendations. Again and again I am telling you, it's just a press release, it's just a press release, ठीक है। 14 मार्च को हुई थी सर। पहला है, आ गया आपका क्वेश्चन, मेनी पीपल वर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी टू बी चार्ज ऑन द नेट कैश टैक्स लाइबिलिटी with effect from 1st July 2017, law to be amended retrospectively। खुश हो गए सर। सो ये प्रेस रिलीज में लिखा गया था, 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग अभी हुई थी सर। नेट कैश लाइबिलिटी, नेट कैश टैक्स लाइबिलिटी, मोहित भूतला जी, नेट कैश टैक्स लाइबिलिटी, प्रेस रिलीज आई थी सर 14 मार्च को। इस पे अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है प्लीज, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो नेट कैश टैक्स लाइबिलिटी ही ले सकते हैं, बिकॉज इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द काउंसिल नाउअडेज। अमेंडमेंट टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 इज द एग्जांपल। परफेक्ट सर, परफेक्ट, बहुत बढ़िया सत्यनारायण जी, यस।
इट्स अ गुड न्यूज, यस यस रॉबिन जी, गुड न्यूज। जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी सर 14 मार्च को, उसमें ये बोला गया था। और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, रेट्रोस्पेक्टिव, प्लीज नोट दिस डाउन। बट अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। नेक्स्ट, वेयर रजिस्ट्रेशन हैव बीन कैंसिल टिल 14th मार्च, अगर 14 मार्च तक कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं तो एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी फाइल्ड अप टू 30th जून। ठीक है सर, ये भी चीज आ चुकी है कि अगर 14 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए थे, जो भी रजिस्ट्रेशन 14 मार्च तक कैंसिल हुए थे, आप उसकी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रिवोकेशन की 30 जून तक। कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम फाइल नहीं कर पा रहे, सर ये नोटिफिकेशन में नहीं आया, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है काउंसिल की जो प्रेस रिलीज में थी। नेक्स्ट, लेट फीस। लेट फीस के नाम से बहुत खुश हो जाते हैं अगर लेट फी वेवर हो जाए तो। लेट फीस नॉट टू बी लिवीड फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न एंड द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर 17, 18 एंड 18, 19 विद एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 2 करोड़। जीएसटीआर 9 और 9C 17, 18 या 18, 19 की अगर कोई भी लेट फी है तो वो वेव ऑफ हो जाएगी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो। राहुल जी कह रहे हैं सर ये हमने तो नहीं पढ़ा कहीं पे भी, किसी वेबिनार में नहीं बताया गया। Sir, just for information, we are doing webinars since last 1 year, and now I actually feel very happy that all the tax professionals are now joining the online webinar thing, and just because of this lockdown. But we are doing since last 1 year, and initially I still remember whenever I used to say, "Sir, मेरा एक webinar है, आप join करेंगे?" तो लोग मुझसे पूछते थे ये webinar क्या होता है? ये 1 साल पहले की बात है। तो हमने तो सिर्फ सेमिनार देखे, वेबिनार क्या होता है तो हम लोग तब से करते आ रहे थे सर, तो हमें पता है कि क्या कंटेंट रखना है, क्या आपको बताना है, कैसे बताना है। बिकॉज द पर्पस ऑफ द वेबिनार शुड बी कि आपको समझ आए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए सर शक्ल खोल के बैठ गए और टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। द पर्पस ऑफ द वेबिनार शुड बी नॉलेज शेयरिंग। यू शुड नॉट बी बोर्ड, आप बोर नहीं होने चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, एंड इट शुड बी बोथ वेज। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आप प्रेस रिलीज पढ़ सकते हैं सर, इसका सोर्स मैंने आपको दे दिया है। लास्ट पॉइंट, ई इनवॉइसिंग और क्यूआर कोड की डेट भी 1 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं। विच क्वेश्चन शुड आई आस्क? ओके, प्लीज आंसर दी क्वेश्चन सर। क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे, पोल करके लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। पोल है सर, एक पोल। हंड्रेड पर 30th जून, 30th जून, परफेक्ट सर, परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब सही आंसर करते हैं। 30th जून, 30th जून, ठीक है सर। 100% लोगों ने 30th जून बोला है, 100%। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे, बिकॉज पता लगना चाहिए सर आप वेबिनार सही से अटेंड करें। ज्यादा नहीं बचा सर, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट और लूंगा बस, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है सर, जीएसटीआर 9C कितने एग्रीगेट टर्नओवर तक ऑप्शनल है, मैंडेटरी है रादर, सॉरी। 2 करोड़ भी बोल रहे हैं सर लोग, यही तो प्रॉब्लम है सर, कंफ्यूज कर देते हैं आप। 2 करोड़ थी सर जीएसटीआर 9 के लिए, जीएसटीआर 9C की 5 करोड़ है। दिस इज वाई ऑलवेज से प्लीज लिसन टू द वेबिनार केयरफुली। चैटिंग तो सर कभी भी कर लेंगे। सो मैं आपको दिखाता हूं, 86% ऑफ द पीपल सेड 5 करोड़, हाउएवर 13% ऑफ द पीपल सेड 2 करोड़, सो इट इज 5 करोड़। ठीक है सर। Sir, I can speak in English. I could not understand Hindi. I am from Tamil Nadu. Veera Raghavan ji. Sir, just because of you all my friends from South India, I really appreciate you all have joined. And I will try my level best to do this webinar in English and Hindi both, since all are my friends. So it's not nothing about partiality like North and South. All are my friends. It's one India, one nation. PMT 08 not activated. Yes, Satyanarji is not yet activated. Okay. So all the recent amendments I have discussed till now, and many of the tax professionals were also requesting, sir, how are you working from home? Please guide us. Sir, आप घर से कैसे काम कर रहे हैं? आप क्या-क्या चीजें यूज करते हैं? Please हमारे को बताइए. How to work effectively from home? Because problem is all the softwares needed servers or maybe needed networks to connect. They needed desktop or something system. They needed a proper CPU or something.
Since our offices are now closed and we all suggest you to work from home itself, आप सब घर से ही काम करिए सर, प्लीज अपने ऑफिस मत जाइए। मैं आपको आज एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपके घर से ही काम आप कर सकते हैं। आई विल टेल यू वेरी वेरी नाइस टूल टुडे with which you can work from home itself, and it is actually very nice. I am also using that for GST. So the benefit of that tool is you can work from anywhere, from any laptop, from any number of for any number of users. So that मैं आपको बताता हूँ। मेरी फर्म में सर आज 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं। पांचों लोग, पांचों मेरे स्टाफ मेंबर्स घर से बैठ के काम कर रहे हैं। पांचों हम सिंक में रहते हैं, क्या काम चल रहा है। पांचों का जीएसटी का काम एक ही सॉफ्टवेयर में चलता है, टूल में चलता है, वेरी सिंपल है, और वो भी सर फ्री ऑफ कॉस्ट है। all the tax professional for all the tax professional it is actually free of cost, and it's a very nice tool. So now I'll tell you about that tool. Many of the tax professionals, many of my friends are already using it and they're very happy. So you can also start using it. The name is Octotex, and it is actually trusted by 20,000 plus tax professionals for 5 lakh businesses. It's a superb tool for all our tax professionals. The main benefit is you can start working from home with the help of Octotex. आपको कोई नेटवर्क, कोई सर्वर नहीं चाहिए सर। आप घर बैठे ही, जैसे आप जीमेल चलाते हैं, the way you operate Gmail ID from your system, from your laptop, similarly you can also use Octotex. So it is trusted by 20,000 plus tax professionals, and yes, it is actually exclusively free for the tax professionals. Sir, I already use Octotex. Thank you so much, sir. Thank you, Nilesh ji. Octotex, very nice GST software. मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, सब ऐसे जब सारे टैक्स प्रोफेशनल्स रिकमेंड करते हैं। एडवोकेट विवेक भट्ट जी, आई एम यूजर एंड इट्स सिंपली सुपर्ब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए, अभी देता हूँ सर, थोड़ा सा रुक जाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दिस, फॉर ऑल ऑफ अस। ऑलरेडी यूज ऑक्टोटेक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, कीप यूजिंग ऑक्टोटेक्स। सो हाउ डज ऑक्टोटेक्स हेल्प इन टैक्स प्रोफेशन एंड जीएसटी कंप्लायंस? कैसे मदद करता है सर? मैं 2 मिनट का आपको बताऊंगा कैसे मदद करता है। सो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट्स की। आशीष कमथानिया जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यूज कर रहा हूं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलरेडी यूजिंग ऑक्टोटेक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, फील्स रियली ग्रेट। प्लीज आप अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, प्लीज आप सब अपने फ्रेंड्स को बताइए। ये एक्सक्लूसिवली फ्री है। मैंने आप सब टैक्स प्रोफेशनल के लिए, मैंने आपके स्क्रीन पे इसका लिंक भी लगा दिया है, आप उस पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। सिर्फ एक लिंक से ही आप क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। जीमेल की तरह चलता है सर, कभी भी चलाइए, कितने भी सिस्टम पे चलाइए, कोई यूजर बेस, कुछ जितने आपके स्टाफ मेंबर है आप सबको एक्सेस दे सकते हैं, क्लाइंट्स अपने सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो ये रिपोर्ट्स है सर ऑक्टोटेक्स में, सिर्फ 8 रिपोर्ट है सर, सिर्फ 8 रिपोर्ट, सिर्फ 8, ओनली 8 रिपोर्ट्स, एंड दैट टू ईयर वाइज, फुल ईयर रिपोर्ट्स इन एक्सेल। कोई पीडीएफ नहीं है सर, ओनली एक्सेल, because whenever the data comes in Excel, then we become experts. So all the data in Excel, that too from 1st July 2017. From 1st July 2017, you will get all your clients' data in Excel in beautiful 8 reports. And so first report is to a full year to a invoice wise and rate wise, summary. Full year, all the invoices, everything full year. Party wise and rate wise. Now let's say for an individual party, you want to see how much purchases he has uploaded in GSTR1, which have now come to GSTR2A. Sir, number of invoices, party wise, taxable value, IGST amount, CGST amount for full year. I hope the screen is now visible. सर आप नीचे देख सकते हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एनुअल समरी एज वेल। पूरे साल का डेटा एक ही एक्सेल में। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, हम यूज कर रहे हैं सर, करते रहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी करिए सर। आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं, मेरे को तो हैरानी है सर, मतलब अब भी आप ऑक्टोटेक्स यूज नहीं करेंगे तो फिर इतनी हेल्प कर सकते हैं सर। वी कैन जस्ट हेल्प यू, वी कैन जस्ट गाइड यू सर। GSTR2 है रेट वाइज समरी। This is very important report just to match with your books of accounts. You can match what is the purchase amount as per 2A rate wise and in the books of account. Next report, purchase versus GSTR 2A reconciliation, monthly, annually, automatic reconciliation with GSTR 2A full year reconciliation, that to year wise, month wise. All the statuses will come, if you can see on my screen, missing in GSTR 2A, partial match, missing in purchase, missing in GSTR, automatic reconciliation. Questions are coming up from where the data will come. Vivek ji, your support team is fantastic. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. If you are not using, I'll give you the contact number. Wait, I'll give you the contact number at the end.
GSTR 3B full year summary in one Excel from 1st July 2017, even if you start using from today. This is the beautiful report which is being given by Optotex, and many such report, total 8 reports are there. नेक्स्ट रिपोर्ट जीएसटीआर 1, सर आपके 10,000 इनवॉइसेज हैं, आपके 20,000 इनवॉइसेज हैं, एक ही एक्सेल रिपोर्ट में पूरे साल का जीएसटीआर 1 का डेटा जो आपने फाइल किया था 1st July 2017. एंड द बेस्ट पार्ट इज irrespective of from where you have filed, whether you have filed from portal, whether you have filed from any other software, whether you have filed from XYZ. I won't take any software name. Sir, just for information, I am just suggesting you, it depends on you whether to use or not. सी आदिल जी, सर सॉफ्टवेयर मेड बाय यू, सर सजेशंस दिए हैं, फीडबैक दिया है सर, तभी बना है ये सॉफ्टवेयर, इतनी मेहनत से बना है सर, आप मानेंगे नहीं, इतना सारा फीडबैक दिया है, फ्री फॉर ट्रायल. नो प्रणीता जी, इट्स नॉट फॉर, इट्स फ्री, एक्सक्लूसिवली फ्री फॉर टैक्स प्रोफेशनल्स. ओके, so GSTR1 3B versus 2A report, monthly, quarterly, annually in just one Excel, full year 3B versus 2A, 3B versus R1 full year. Such a beautiful report. ITC ledger and cash ledger, full year ITC credit and cash ledger in just one Excel. Surendra ji, Optotex software is installed but couldn't operate the same. Sir, I will give you the contact number, you can call on that number. So it is multi-users, automatic creation of GSTR 9, statutory compliant, very simple to use and seamlessly integrated with GST network. So this is the screen for Optotex. You can see all your clients, whether 500 clients, 600 clients, unlimited clients you can upload to Optotex, add to Optotex. User based, you can add your staff members in Optotex. Very simple screen sir. Dashboard बनाया हुआ है सर. एक स्क्रीन में आपके सारे क्लाइंट्स का पूरे साल का रिटर्न का स्टेटस दिखता है. GSTR 1, GSTR 3B, ARN नंबर, सब कुछ एक्नॉलेजमेंट यही दिखता है, सिंगल स्क्रीन. सर ये चाहिए हमें. Sir, the problem is, I'll tell you what. The software is made by IT team, right? The softwares are made by IT team. The sales people come to sell us. We always buy just because we don't have any option. और उसके बाद हम लेके रख देते हैं. Bitter truth is, हम उसे खरीद के रख देते हैं, हम यूज तक नहीं करते. Why? सर क्योंकि चाहिए ये था, मिला ये. आप समझ रहे हैं? चाहिए कुछ होता है, बनता कुछ है, और बिकता कुछ है, और मिलता कुछ है. This is the problem. But अगर Optotex में जो भी अभी मैंने आपको दिखाया, you would be glad to hear that कि आपको यही चीज तो चाहिए. सर क्या चाहिए होता है कि मेरे सारे क्लाइंट्स का रिटर्न स्टेटस, I should know all my return status, right? All my clients return status. I should be able to see all my reports, all my clients reports. I should be able to send reminders to my clients. Everything is there. Simple. Reports I have already shown. So this is the dashboard. Full year return status on one screen with ARN number and date of filing. Sir, आज की डेट में भी, even in today's world, I have seen people noting down ARN numbers on their मैनुअल कॉपी, हाथ से सर कॉपी में क्लाइंट्स का ARN नंबर लिख रहे हैं वो. क्यों सर? इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यूज करिए ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसका कोई चार्ज भी नहीं है. तो अब भी यूज नहीं करेंगे तो कब करेंगे सर? कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं सर, दे रहा हूं. परचेज रिकंसिलेशन के लिए JS1 फाइल भी है. GSTR 2A की JS1 फाइल आप फुल ईयर की निकाल के टैली में भी अपलोड कर सकते हैं. So you can upload JS1 file for GSTR 2A in Tally as well. You can download it from Optotex and upload in Tally for automatic purchase reconciliation Tally. So we have Tally, we have connectors with Tally as well. So you can upload the data. Sir, it is paid or free? Sir, it is exclusively free for tax professionals. It is exclusively free for tax professionals. We do not give this software to our clients. सर ये सॉफ्टवेयर हम क्लाइंट्स को नहीं देते, प्लीज नोट डाउन. ये सिर्फ टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए है, ये क्लाइंट्स को नहीं देते सर. अपनी फर्म भी चलानी है मुझे. आई नीड टू रन माय फर्म एज वेल, सो वी डोंट गिव दिस सॉफ्टवेयर टू क्लाइंट्स. व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूं सर, दे रहा हूं. 2 मिनट हिमांशु जी, 1 सेकंड बस, आ गया आपके पास. अभी अगर आपने ऑप्टोटेक्स इंस्टॉल किया, मैंने आपके स्क्रीन पे लिंक दे रखा है, प्लीज उस पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं. सपोर्ट टीम हमारी आपको कॉल कर लेगी. तो डेटा इंपोर्ट गवर्नमेंट एक्सेल फाइल से कर सकते हैं, JS1 फाइल से, टैली बिजी मार्क से इंपोर्ट हो जाता है डेटा. You can import it from Tally Busy Mark, JS1 file and government Excel format. So you can file returns, you can view reports, and you can view status of the returns. Done. Only 3 things. This is what Optotex does. यही चाहिए सर, बस. Setup कैसे करना है? How to set up Optotex? Sir, first is sign up. You need to add your clients. It's my humble request, please add all your clients in Optotex today, because this is the lockdown period which we can take benefit of. We can set up our Optotex today because
आगे जाके सर फिर जब ऑफिस में चले जाएंगे फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर ऑप्टोटेक्स ऐसे ही रह जाएगा। सो सारे अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं वो आप ऑप्टोटेक्स में ऐड कर लीजिए। उसकी मदद से आप सारे उनके रिटर्न स्टेटस, सारी उनकी रिपोर्ट्स आप 1 जुलाई 2017 से डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज ऐड ऑल योर क्लाइंट्स इन बल्क टुडे इटसेल्फ। यूट्यूब पे चैनल है सर ऑप्टोटेक्स करके, आप सर्च कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सर्च OPTO टेक्स एंड सी दी वीडियोस। उस पे सारी वीडियोस हैं, कैसे सेटअप करना है, कैसे साइन अप करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सपोर्ट, सपोर्ट पे बहुत फोकस है सर। वी फोकस अलॉट ऑन सपोर्ट बिकॉज सपोर्ट इज द बैकबोन ऑफ समथिंग, एवरीथिंग रादर। इफ सपोर्ट इज नॉट देयर, नथिंग विल वर्क। So live chat support, just like you chat in WhatsApp, there is a live chat in Optotext also. Email, live session, on call. So phone numbers, please note these phone numbers down. Please note these phone numbers down. I have listed all the phone numbers for language, all languages. For हिंदी आप इन दोनों नंबर्स पे किसी में भी कॉल कर सकते हैं अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं। अगर आप तमिल में, तेलुगु में या किसी और लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। Email ID is info@optotext.com. You can just call on these numbers and get Optotext installed. Please note down, nothing will be charged from you for Optotext. For you from, sorry, I'll repeat again. We will not charge a penny for you for Optotext from you. It's exclusively free for text professionals. This is exclusively free. Please note down. ये टेक्स्ट प्रोफेशनल्स के लिए फ्री है सर। आज ही ऑप्टोटेक्स को इंस्टॉल कर लीजिए, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है सर, इसका फायदा उठाइए, सारे क्लाइंट्स अपने बल्क में ऐड कर लीजिए ऑप्टोटेक्स में। इसके बाद मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर साइन अप कैसे करना है वो बता दीजिए, हाउ टू साइन अप। ठीक है सर, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ, प्लीज 1 सेकंड वेट करिए, मैं बता देता हूँ। This is the process flow for GST return filing in Optotext, and these are the just simple steps, simple 4 steps to file the returns. So we start with the sign up first. So this is just a 2. This is the process flow for GST return filing in Optotext, and these are the just simple steps, simple 4 steps to file the returns. So we start with 1 second सर, बस वो बता रहा हूँ मैं कि साइन अप कैसे करना है। तो I will show you right now. आई होप आप सब आपको पता दिख रहा होगा कि साइन अप कैसे करना है। एक बार प्लीज इसे सुन लीजिएगा। And it works on a simple Google Chrome browser, which you all must be using. And I enter our software link, which is gst.optotext.com. Please note gst.optotext.com. I repeat, no HTTPS, no www, nothing, just simple gst.optotext.com. I press enter or the mouse over, and it's opening right now. So sign up is required only when you log into Optotext first time. So we have two options for sign up with Google and the email and password if you want. So login is for the regular user. So once you have signed up, next time you will only log in. It's just like Gmail. So sign up with Google, I will show you one option. So this is for the users who have their own Gmail account. So I can sign up through my Gmail ID also. I'll press back. I'll show you the second option right now. So in this sign up, I will enter my email ID. Let's say Venkat _@hotmail.com. Password you can keep any. It can be same as your email ID. It can be different also. Nothing mandatory. Just keep in mind that you need to follow some procedures for this password. Let's say if I enter Venkat@123, it will accept. But if I try to enter only Venkat or only numbers, it will not, because what it says is it should be at least 8 characters in length. It should contain at least 3 of the following 4. So either lower or uppercase, numbers and special characters. So the perfect password would be the name @123, because it will cover 3 out of these following 4 restrictions. So I will keep as Venkat@123. You can keep any of your choice. So I'm on the sign up tab. I'll just press sign up. You can sign up from Hotmail, you can sign up from Yahoo, any Gmail, any email ID. If you have Gmail, you can use this option also. So I'll just press sign up, and it will take me to a small registration page. So setting a company for tax practitioner, tax advocate, please note this is my firm registration, not my client's firm registration. So I need to enter my details being a tax practitioner. So company name means the firm name. Let's say Venkat and Company. Contact person name Mr. Venkat Reddy. Your name.
email ID it has already picked up from your sign up, phone number, address, and state, Tamil Nadu. Country already done. GST details, these are just optional. If your firm is registered under GST, generally our CA firm or advocates firm, tax practitioners firm are not registered, so you can leave it blank. These are optional, these are not mandatory. Please note, these are not mandatory. If you have GST registration, you can put your details. Referral code means this is the membership number which we have. Let's say a CA has his own membership number, advocate has a registration number, tax practitioners have a registration number. The certificate which you got must be having a registration number, so you can put in this registration number in this field. Why this field is because this is the validation, this is the field from which we validate whether the registration is being done by a tax professional or not, because as you know that Optotex is exclusively for tax professionals, so we validate this, that this is being used only by the tax professionals. So referral code is the membership number. As I told, I have done the registration, done. I'll just press save. That's it, done. So I've done the sign up, it's all done. The software is all yours and you can now use it. As you can see my screen, Venkat and company has come, and done. We are done with the first step, which is sign up. Please do watch the second video also, which tells you about how to add clients in Optotex, because this is very important. And that's it. Thank you so much. Thank you everyone. Uh, I hope you all have understood how to sign up to Optotex and सर फाइल शेयर कर दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ, पीपीटी शेयर कर देता हूँ अपनी. सो I hope you are now able to download my PPT. I have given it in front of you. You can just click it there and download my PPT. Share PPT बोला जी sir. I have already shared. You can now download. How to add bulk client? Kanhaiya ji, I'll tell you. Wait. Very nice webinar, Saurabh ji. Thank you. Please download the PPT. Share your PPT file. कन्हैया जी, I have already shared. फाइल शेयर कर दीजिए. थैंक्स फॉर पीपीटी. दीपांशु जी मिल गई. थैंक यू सर. पीपीटी आप सबके स्क्रीन पे है सर, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं. मैंने शेयर कर दी है. थैंक यू. अभी खत्म नहीं हुआ है सर. 2 मिनट बस और मैं आपके लूंगा. कुछ क्वेश्चंस भी तो पूछ लो. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच जीएसटी टॉपिक यू वांट द नेक्स्ट वेबिनार. आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं सर मैं नेक्स्ट वेबिनार लूं? प्लीज बताइए. पोल है सर, पोल पे क्लिक करिए प्लीज. या अगर इन 4 टॉपिक में से आप कोई और टॉपिक भी चाहते हैं तो प्लीज आप चैट में लिख सकते हैं. चैट में लिख दीजिए अगर आप जो भी टॉपिक चाहते हैं कि जिस टॉपिक पे भी वेबिनार लिया जाए. प्लीज बताइए. रिवर्स चार्ज, न्यू रिटर्न्स, आईटीसी, कोई और टॉपिक. अगर इन 4 टॉपिक, इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक you can write in chat as well. ITC, RCM, new returns, 99C. Any other topic you can write in chat, no problem. ITC all provisions is getting the maximum number of votes. RCM, all provisions, GST new returns. करते रहिए सर, वोट करते रहिए. पीपीटी मैं शेयर कर चुका हूं. ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं. सो रिजल्ट जो आए हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग आए हैं. अगर आप देखें तो आईटीसी पे 30% है, आरसीएम पे 31% है. सो 1% से आरसीएम इज ज्यादा है. 9 एंड 9C न्यू रिटर्न्स पे कम है. सो आई थिंक 9 एंड 9C एवरीबडी इज नाउ क्लियर. सो आरसीएम और आईटीसी, ओके, वील डू इट ऑन आरसीएम और आईटीसी. रिफंड्स ठीक है सर, रिफंड्स पे भी करेंगे. रिफंड्स पे करेंगे. आपको फाइल पीपीटी मिल गई है, आपके फाइल है, देयर इज अ बटन फाइल, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट बटन फाइल एंड यू कैन डाउनलोड द पीपीटी. सर और क्वेश्चन पूछिए. ठीक है. सो लास्ट एक क्वेश्चन है, वेदर मींस हाउ विच ऑफ दीज ऑप्शंस विल हेल्प योर क्लाइंट्स रिकवर फास्टर फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन. मतलब कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके क्लाइंट्स को हेल्प करेगा, जो लॉकडाउन के बाद जब खत्म होगा, लॉकडाउन जब खत्म होगा तो क्या ऐसा चीज होगा इसमें जो आपके क्लाइंट्स को हेल्प करेगा? प्लीज बताइए. 4-5 ऑप्शन है सर, इसमें आप कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं.
पोल्स आ रहे हैं, वोट्स आ रहे हैं, वोट्स आ रहे हैं, प्लीज कीप ऑन वोटिंग। सो ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम भी कुछ ऐसा हेल्प कर सकते हैं जिससे आपके क्लाइंट्स की हेल्प हो। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं अपने क्लाइंट्स की हेल्प करना, प्लीज इस पोल को जरूर आंसर करिएगा। नेक्स्ट वेबिनार करेंगे सर, नेक्स्ट वीक। आशीष जी नेक्स्ट वीक करेंगे। रिफंड रिफंड्स, आई होप आप सबको पीपीटी मिल गई है। अगर पीपीटी ना मिली हो तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा। ऑप्टोटेक्स जरूर यूज करिए। सर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए। दे देता हूं सर, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। सर व्हाट्सएप ग्रुप दे दीजिए। दे दूं क्या सर? चलिए देता हूं, एक सेकेंड। किधर गया? सर एक पहले हेल्प चाहिए आप सबकी। आप फेसबुक पे जाके रिव्यू जरूर दीजिए सर। मैंने आपके स्क्रीन पे रिव्यू का बटन लगा दिया है। आपको कैसा लगा ऑप्टोटेक्स, कैसा लगता है अगर आप चला रहे हैं? हाउ डू यू फील दैट ऑप्टोटेक्स इज? इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग ऑप्टोटेक्स, व्हाट डू यू फील अबाउट ऑप्टोटेक्स? व्हाट डू यू लाइक अबाउट ऑप्टोटेक्स? प्लीज गिव अस अ रिव्यू ऑन फेसबुक। आप सबके स्क्रीन पे बटन है, प्लीज रिव्यू दे दीजिएगा। इस रिव्यू के बाद मैं पक्का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा दूंगा। So please do give us a review. आपने numbers, I hope everybody has noted down these numbers for Optotex. And so this is the WhatsApp group link. I will tell you how to join it. In your mobiles, just type in Google Chrome browser or any browser you have in mobile, just type bit.ly। ठीक है सर, नंबर मत दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, आप खुद ही ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है? bit.ly/optotex4। so this is the joining link for WhatsApp group. You just type this link in any of your browser in your mobile phone and it will automatically allow you to join the WhatsApp group. So just type bit.ly/optotex4 and it will allow you to join the WhatsApp group. मैं लिंक भी डाल देता हूँ WhatsApp ग्रुप का, अगर आप उससे ज्वाइन करना चाहें तो मैंने लिंक भी डाल दिया आपके स्क्रीन पे। आई हैव गिवन द लिंक आल्सो फॉर WhatsApp ग्रुप, सो इफ यू वांट टू जॉइन। सो all the GST updates you can get on our WhatsApp group, and if we miss any webinar, then how we can view your webinar? Hemant ji, I will try my level best to upload this recording on YouTube, and I will try my level best to share it to you on email. 5 rating is given, Ashish ji. Thank you Ashish ji, thank you. सुरेंद्र जी, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर सच अ नाइस वेबिनार। सर कोई बढ़िया सा क्वेश्चन पूछिए। बढ़िया सा क्वेश्चन पूछूं सर? चलिए ठीक है, मैं बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जीएसटी का पूछ, नहीं ये पूछता हूँ सर, चलिए, क्योंकि हम डिस्कशन तो खत्म कर चुके हैं। बताइए सर, आंसर करिए। विल द लॉकडाउन एक्सटेंड? यस यस यस, एवरीबडी इज सेइंग यस। ऐसे क्वेश्चन भी चलते रहने चाहिए सर, इंजॉयमेंट भी चलता रहना चाहिए। वी ऑल आर हियर टू एंजॉय आवर लाइफ, नॉट ओनली टू स्टडी और नॉट ओनली टू वर्क। विल द लॉकडाउन एक्सटेंड? यस, 95%, 95%। एंड कर देता हूं सर, देख लीजिए रिजल्ट। 95% ऑफ द टैक्स प्रोफेशनल्स आल्सो हैव सेड दैट द लॉकडाउन विल एक्सटेंड। कैन वी गेट दिस पीपीटी ऑन मेल? नीरज जुनेजा जी, फॉर श्योर सर, आई विल शेयर। शोभित जी, प्लीज सजेस्ट। हाँ, अब क्वेश्चंस पूछिए सर। आई विल टेक ऑल दी क्वेश्चंस नाउ। आई विल टेक ऑल दी क्वेश्चंस नाउ। Thank you so much. Thank you, Shobhit ji. Please suggest some books, journals, ready reckoner. Rajat ji, excellent presentation as usual. Thanks a lot. Satyanath ji, thank you. I hope I have clarified your MSME point. So now the notification has come up, so there is no MSME word in that. Thank you, thank you. Yes, we are doing webinars for exclusive associations as well. So अगर आपका कोई भी एसोसिएशन है जहां पे आप कमिटी मेंबर्स की टीम में है, तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि हम वेबिनार्स भी कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव एसोसिएशंस के लिए कर रहे हैं। तो if you need any help, you can just call on these numbers and let us know. मोहम्मद वसीम जी, वेबिनार रिकॉर्डिंग मिल सकता है? सर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। थैंक यू सर, ग्रेट सेशन। थैंक यू। मुरारी, कृष्ण मुरारी जी कह रहे हैं रिफंड अगर बाद में फाइल कर दूं? सर रिफंड जो 7 अप्रैल तक फाइल हैं, सिर्फ उन्हीं को अभी रिफंड मिलेगा सर, बाकी को कब मिलेगा पता नहीं। थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन, सिंपल वर्ड्स। रविंद्र जी, थैंक यू सर, यू डू सिंपली ग्रेट जॉब। सर जस्ट कीप यूजिंग ऑप्टोटेक्स, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। ऑप्टोटेक्स बहुत अच्छा लगता है। नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, नाइस वेबिनार। श्रीनिवास जी, थैंक यू।
See Ajit Kumar Jhaji, thank you. Sir, we learnt a lot. Thank you with regards to, thank you. Awesome always. Thank you. Great session. Thank you. Thank you. सर प्लीज डू सजेस्ट ऑक्टोटेक्स्ट टू एवरीवन. प्लीज आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी सब ग्रुप्स हैं, आप सब उसमें व्हाट्सएप शेयर करिए, ऑक्टोटेक्स्ट को शेयर करिए, बिकॉज ये सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है. और जितने ज्यादा लोग इसे चलाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा. सर क्लाइंट्स कैसे ऐड करने हैं ऑक्टोटेक्स्ट में एक बार दिखा दीजिए, मैं दिखा देता हूं आपको. सो हाउ टू ऐड योर क्लाइंट्स इन ऑक्टोटेक्स्ट, प्लीज आई विल शो यू नाउ जस्ट फॉर 2 minutes. So if you have missed the first step, sign up, please watch our first video, which was exclusively for sign up. So let's do the second step, which is known as add clients. Add clients refers to adding clients in your software, GST, Optotex software, to file their GST returns. So how to add clients? This download sample Excel you can see on my screen. Just press this button, home tab, download sample Excel. A sample Excel will be downloaded here, just like you can see on my screen. The Excel has been downloaded. I'll open it. It's a very simple Excel template. You can just either enter the client details in this Excel, or if you have any existing Excel in your computer which you must be maintaining for clients, you can just copy paste it from there. So I'll press enable editing. This is the Excel which right now you can see on my screen. One dummy client has been added. I'll just delete it and I'll explain. So I'll delete this. So what does this Excel says? First column is name, the client's name, email ID, client's email ID. If you don't have his email ID, no problem. You can just enter any email ID. It can be yours also. GSTN number, the client's GSTN number, his city or address. If you don't have his address, you can just enter city. If you don't know his city, you can just enter your city also. GST registration type, this is nothing but is the client composition under composition scheme or regular. If you are choosing composition, please select the composition tax rate as well for GSTR4. If he is a regular dealer, no need to select this, so you can just delete it. Portal username, what is this? This is the exact actual username which you use it on the government portal to file his return. This is the username of your client which you use in government portal. Please enter it correctly. This is phone number of the client. If you have it, please enter it. Contact person, what's your client name? So let me tell you, these red fields are mandatory and these black are non-mandatory. So phone and contact person, you can just leave it. But this username, please do enter, otherwise you won't be able to file the returns. So this was the blank Excel which I explained just now. Let me show you one pre-filled Excel which I have prepared for my own firm. And please enter all these details correctly. GSTN number, it should be 15 digits. So let me show you a pre-filled Excel. Pre-filled Excel which I was talking about, client name. This is my client name. Email ID, if you have your client's email ID, otherwise you can enter your own email ID also. His GSTN number, then city or address. If you have his address, client's address, it's okay, otherwise you can just enter the city also. Then the GST registration type, regular or composition, as we discussed earlier also. If it is composition, please do enter the composition tax rate as well, otherwise regular, no need to enter composition tax rate. His portal username, this is the username which you log in the government portal. So now since we have prepared the Excel, let's upload the Excel in the software. So this is the button where we need to click on add bulk business, and I'll select the Excel which I prepared. So I am selecting the Excel, open, import, and now it's being imported. It will take maximum 10 to 20 seconds and it will import all my clients. See, it has imported all my clients on one screen. On a single screen you can see all my clients here. And the beauty of this is you can just see their ARN numbers, their status, all on a single screen with the help of this. So it will help you a lot if you will upload all your clients in bulk. So this is a very important step. Let me explain what does this tax company owner means. Tax company owner means I'm the owner of my firm, and tax consultant means I'm the tax consultant for all my clients. So this is the difference. Do watch our third video, which is for uploading the data for every client. And thank you so much. Thank you so much everyone for watching the video. Have a nice day. Thank you.
I hope. Am I audible to you? Am I audible to you all? Mm, no, no. सर आवाज आ रही है आपको? प्लीज, वेरी सिंपल चेतन जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यस यस यस, ग्रेट ग्रेट, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो शोभित जी, आप बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप जर्नल रिकमेंड करिए, क्या कहते हैं, कुछ रेडी रेकनर रिकमेंड करिए। सर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ आज, हिंदी में समझाऊंगा। सर जब तक एक्ट नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक एक्ट या रूल्स, एक्ट और रूल्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना सीखेंगे, तब तक कितनी भी किताबें खरीद लीजिए सर, कुछ नहीं होना। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सर, ऑथर्स लिखते रहेंगे, बुक्स बिकती रहेंगी और आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। मैं किसी का फेवर नहीं करता, किसी का अगेंस्ट नहीं बोलता, लेकिन सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब तक आप एक्ट, रूल्स और नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर जीएसटी लॉ में अपडेट रहना बहुत जरूरी है। आप सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाइए सर, मैं भी सारे नोटिफिकेशन वहीं से पढ़ता हूँ। सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाइए, वहां से नोटिफिकेशन पढ़िए। सॉफ्टवेयर इज वेरी इजी, थैंक यू सर, थैंक यू। अपडेट विद नोटिफिकेशन, करेक्ट सर। मोहम्मद जी, आई कुड नॉट डाउनलोड ऑप्टोटेक सॉफ्टवेयर। क्या बात कर दी मोहम्मद जी आपने, हम अब आपको कॉल कर लेंगे, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। मैं नंबर दे देता हूँ आपको, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा, एक सेकेंड। सर मैंने फाइल पहले से ही शेयर कर रखी है अपनी पीपीटी, आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो पीपीटी आ जाएगी। सर आप एक माइक क्यों नहीं ले लेते? सर हेडफोन्स अच्छे लगते हैं, हेडफोन से ही करता हूँ, ठीक है। Sir, English only. Thank you, sir. Mathanji, sure, sure, sure. So I was just mentioning, so one of the text professional was asking which book should I read. So I was just explaining him, until unless you won't be able to read Act, rules, notifications, circulars, orders, no book is relevant. C.S. Sonali Jain, who is CN is providing services. Ma'am, I am unable to understand your question. It would be great if you can mail me all questions on this email ID, info@optotext.com. सर फोन में प्रॉब्लम है पीपीटी डाउनलोड की, प्लीज मेल नीरज जुनेजा जी। सर बिल्कुल मैं मेल करूँ, आपका नाम मुझे अच्छे से याद हो गया। कहाँ से है नीरज जी, आप जरूर बताइएगा मेरे को। विपुल जी, थैंक यू थैंक यू। रितेश जी, जीएसटी 9 2 करोड़। रितेश जी मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन। प्रीतम जी, आई हैव साइंड अप बट फॉर सम क्लैरिफिकेशन आई वांट टू डिस्कस विद द एग्जीक्यूटिव। श्योर प्रीतम जी, जस्ट कॉल। इन आवर सॉफ्टवेयर हाउ वी फाइल जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1। सर यूट्यूब पे जाइए, ऑप्टोटेक्स के यूट्यूब पे सारी वीडियोस हैं, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर यूजफुल इन्फॉर्मेशन। सर मेरे को आप सबसे एक शिकायत है, शिकायत ये है कि अभी तक फेसबुक आपने पेज मेरा लाइक नहीं किया। सर एक लाइक तो बनता है सर ऐसे वेबिनार के लिए, एक लाइक तो कर दीजिए। चलिए ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं और टाइम भी हो गया है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है। दिल्ली से है नीरज जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू थैंक यू। चलिए टाइम भी बहुत हो गया, इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 hour। Now we need to end the session here, and we are using Optotec. Excellent, excellent. Thank you, sir. Thank you. Keep using. But it's my humble request. Please add all your clients in Optotec. Then only it will be activated. Then only the setup will be completed. So you need to add all your clients. Sure, sir. Sure, sure, sure. ठीक है, ठीक है। हाँ एक और चीज है हमारे, देयर इज अ कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन इन ऑप्टोटेक्स नेम्ड एज लॉकडाउन हीरो। सो एवरी डे we make one of our text professional as lockdown hero. Whosoever uploads the maximum number of clients in GST in Optotext, we award him as a lockdown hero, since the lockdown is going on for 21 days, and we award him as a him or her as a lockdown hero. So I would request you to add as many clients as possible in Optotext and become a lockdown hero. सर घर से जीएसटी की मुहिम है, आप सब साथ दीजिए, आप सब ऑप्टोटेक्स घर से ही चलाइए, घर से चला सकते हैं सर, कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की, प्लीज ऑफिस मत जाइए। Last but not the least, my message to you all: please be safe, please stay safe, be at home. I know it's very tough to make your parents sit at home or make your children sit at home, but this is the time which you need to, adhere to it, and this is the time where your responsibility comes up.
So you have to take care of your parents, you have to take care of your children, you have to take care of yourself and the whole family as well. With this, thank you so much. Namaskar, Sat Shri Akal, Adab, Shukriya. थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. बहुत अच्छा लगा सर. बस यही प्यार बना रखिएगा और सारे वेबिनार्स ऐसे ही ज्वाइन करते रहेगा. थैंक यू. कीप यूजिंग ऑप्टोटेक्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलिए बाय सर. बाय. थैंक यू. नमस्कार.